Hello students, myself Sachin Gupta. In this lecture, we will discuss arithmetic mean continuous series. In the previous lecture, we discussed discrete series. Now, arithmetic mean continuous series, continuous or class interval series. कॉन्टिन्यूअस और क्लास इंटरवल सीरीज जैसे 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से. हेयर ऑल्सो इन दिस सीरीज वी हैव थ्री मेथड्स: डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और अज्यूमिंग मेथड, एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड. तो फर्स्ट वी स्टार्ट डायरेक्ट मेथड. इन दिस मेथड द फॉर्मूला फॉर मीन x bar is equal to sigma fm upon n. Sigma fm upon n. In some books we can write fx, x here also mean, mid value m. m means mid value. तो m से हमें याद भी रहता है कि m is mid value. तो sigma fm upon n, n is total of frequency. Total of frequency. The formula is x bar is equal to sigma fm upon n. m mid value, n total of frequency. Now we do a numerical to solve. Question: calculate arithmetic mean or mean by direct method. By direct method. अब here CI class interval. The class interval is 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, and 80 to 100. And the frequency is 10, 8, 12, 10, 8, 12, 14 and 6. So this is the question. CI class interval 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. Now CI class interval 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. The frequency F 10, 8, 12, 14, 6. Now first we find mid value m. How we calculate mid value? This is lower limit and this is upper limit. Add lower limit and upper limit divided by 2. तो 0 plus 20, 20 upon 2, 10. 20 plus 40, 60 upon 2, 30. अब इसमें गैप है 20 का तो 20 ऐड करते जाओ, 50. और अगर आप ऐसे करेंगे तो 40 plus 60, 100 upon 2, 50. 60 plus 80, 140 upon 2, 70 और plus 20, 90 आ जाएगा. नाउ इसमें जैसे गैप है 20 का तो 20 20 फिर ऐड कर दो तो भी वी कैन गेट मिड वैल्यू, तो भी हमें मिड वैल्यू मिल जाएगी. नाउ फॉर्मूला है हमारा x bar is equal to sigma fm upon n. The formula is sigma fm upon n. So now we multiply frequency and mid value. 10 10s are 100, 8 3s are 24, 12 5s are 60, 14 7s are 98, 980 आ जाएगा, 6 9s are 54. This is total sigma fm and this is n. 50 और टोटल करेंगे 0, 8 plus 4, 12 plus 4, 16 का 6 कैरी ऑन 1, 9 plus 1 10, 5 15, 15 plus 6 21, 22 and 24, 2460. ठीक है.
नाउ एक्स बार सिग्मा एफ एम 2460 अपॉन n 50. अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 4 रिमेन 6, तो 5 9 ज़ा 45, 2 49.2. The answer for this question is 49.2. So this is the direct method of calculating mean by in continuous series. ये continuous series में direct method है. इसमें फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन एन. एफ एम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू 2460 अपॉन 50, तो 49.2 आ गया. नेक्स्ट, नाउ वी डू सेकेंड मेथड, इनडायरेक्ट एज्यूम मीन और शॉर्टकट मेथड. इनडायरेक्ट एज्यूम मीन और शॉर्टकट मेथड. Here the formula for indirect or assume mean or shortcut method. The formula is x bar is equal to a plus sigma fd upon n. सेम है जैसे हमने डिस्क्रीट में किया था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n. बट हेयर द d इज इक्वल टू m माइनस a. m मिड वैल्यू, a एज्यूम मीन, n टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. d m माइनस a, m मिड वैल्यू, a एज्यूम मीन, n टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. So this is the formula of calculating mean by shortcut method in continuous series. Now we do numerical, calculate mean or arithmetic mean by indirect or assume mean or shortcut method. Same question, calculate arithmetic mean by indirect method. CI 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. Frequency 10, 8, 12, 14, 6. So first we find, we write CI 0 to 20, 20 to 40. CI means class interval. 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. And here the frequency 10, 8, 12, 14, 6. Now we find mid value m. 0 plus 20 divided by 2, 10. 20 plus 40, 60 upon 2, 30. 20 का गैप है तो 50 plus 20, 30 plus 20, 50 plus 20 करेंगे 70 plus 20, 90. Now we find d here. m minus a. m mid value, a assume means suppose 50 मान लिया हमने, तो 10 माइनस 50 माइनस 20, 30 माइनस 50 इसी में से लेंगे बिकॉज आर कैलकुलेशन बिकम इजी. हम कोई और भी ले सकते हैं एज्यूम मीन, बट उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी. सो हम मिड वैल्यू में से ही और मिडल वैल्यू लेंगे सो दैट सम हैव पॉजिटिव सम हैज नेगेटिव. तो 10 माइनस 50 सॉरी 10 माइनस 50 माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, 0, 70 माइनस 50, 20, 40. Now we find formula for mean x bar a plus sigma fd upon n. a plus sigma fd upon n. So now we find fd, f into d. 10 4 is 40, तो minus 400, 8 2 is 16, minus 160, 0, 14 2 is 28, 6 4 is 24. So this is sigma fd. This is sigma fd. ठीक, अब टोटल इज ऑफ दिस 0, 6 माइनस 560 आएगा. ये कितना टोटल आ गया, माइनस 560 इनका, और इसका ये आ जाएगा 0, 520. ठीक है, तो माइनस 560 प्लस 520 तो माइनस 40 आ गया. एंड n is 50.
The formula is x bar is equal to a plus sigma fd. A assume mean 50 plus sigma fd. Sigma fd is minus 40 upon 50. तो 50 माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा, तो 49.2 आ जाएगा. तो द आंसर इज 49.2. देखो 50 पॉइंट लगाएंगे और 0.8, तो हो गया 4 9 10 माइनस 8 2, तो 49.2. तो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन. इनडायरेक्ट मेथड है इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज. कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इनडायरेक्ट मेथड. एंड नाउ वी डू, देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं. एक्स फॉर्मूला फॉर इनडायरेक्ट मेथड इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन. क्वेश्चन है सी आई, क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 40, 80 to 100 तक. एफ फ्रीक्वेंसी 10, 8, 12, 14, 6. मिड वैल्यू एम. तो 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, 30 आ जाएगा. गैप है 20 का, 20 20 ऐड कर देंगे. डी एम माइनस ए. एम मिड वैल्यू, ए एज्यूम मीन 50 मान लिया, तो अब ये जैसे मिड वैल्यू है 10, 10 माइनस 50 माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 40 आ गया. एफ इंटू डी कर देंगे. फ्रीक्वेंसी इंटू डी डेविएशन. 10 इंटू माइनस 40 माइनस 400, 8 इंटू माइनस 20 माइनस 160, 12 इंटू 0 0, 14 टू ज़ा 28, 280 आ जाएगा. 20 है, 6 4 ज़ा 24. तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव आए 520, नेगेटिव है माइनस 650. तो सिग्मा एफ डी माइनस 40 और एन 50. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन. ए एज्यूम मीन 50 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस 40, एन 50. तो प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 5 0.8, 49.2. तो दिस इज indirect method of continuous series. Now we do the third method, step deviation method. The third one is step deviation method. Step deviation method. In this method, the formula is x bar a plus sigma f d dash upon n into I or C. A plus sigma f d dash upon n into I or C. अब d dash d upon a, d m minus a, m mid value, a assume mean, I क्लास इंटरवल जो गैप है इनका, जैसे हेयर 0 to 20, 20 to 40, तो 20 20 का गैप है, तो क्लास इंटरवल 20 आ जाएगा. और n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई. फॉर्मूला सेम है जैसे हमने डिस्क्रीट में किया था, बट हेयर चेंज हो जाएगा डी में. डी डैश डी अपॉन आई, डी एम माइनस ए, एम मिड वैल्यू, ए एज्यूम मीन, आई और सी क्लास इंटरवल, और एन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ वी डू अ न्यूमेरिकल फॉर कैलकुलेटिंग arithmetic mean by step deviation method. Calculate arithmetic mean by step deviation method. Here CI 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. The frequency is 10, 8, 12, 14, 6.
ठीक है. नाउ फर्स्ट वी फाइंड m मिड वैल्यू. 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 तो 10 आएगा. 20 + 40 60 अपॉन 2 30. 20 का गैप है 50 70 90. नाउ वी फाइंड d. d m minus a. m minus a. a एज्यूम मीन सपोज 50 मान लिया हमने तो ये आएगा -40. 10 - 50 -40. 30 - 50 -20. 0 50 - 50 0. 70 - 50 20. 90 - 50 40. And now we find d dash. d upon I. d I gap. The interval is 20. तो -40 अपॉन 20 -2. -20 अपॉन 20 -1. 0 अपॉन 20 0. 20 अपॉन 20 1. 40 अपॉन 20 2. Now the formula for mean x bar is equal to a plus sigma fd dash upon n into I. a plus sigma fd dash upon I upon n into I. Sorry. ठीक है. एफ डी डैश. दिस इज एफ, दिस इज डी डैश. इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 2 ज़ा 20 -20. 8 1 ज़ा 8 -8. 2 12 0 ज़ा 0. 14 1 ज़ा 14. 6 2 ज़ा 12. तो दिस इज -28. दिस इज 26. सिग्मा एफ डी डैश तो -2. -28 + 26 -2 n इज इक्वल टू 40. नो सॉरी 50 n. ठीक है. तो x बार इज इक्वल टू a. एज्यूम मीन 50. सिग्मा एफ डी डैश -2 अपॉन 50 और इंटू 20. I is 20. तो 50 प्लस माइनस माइनस 4/5. तो 50 - 0.8 49.2. तो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन स्टेप डेविएशन मेथड अंडर कॉन्टिन्यूअस सीरीज. तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्लास इट इज ऑल्सो नोन एज क्लास इंटरवल सीरीज. तो जैसे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. Frequency 10, 8, 12, 14, 6. CI 0 to 20. First we find M because the formula for mean is x bar is equal to A plus sigma fd dash upon n into I. और d dash होता है d upon I d m minus a. तो first we find m means mid value. How we can find mid value? तो lower limit plus upper limit divided by 2. तो 0 + 20 divided by 2 10. 20 + 40 divided by 2 30. अब इनका गैप है 20 का. 20 ऐड कर दो. 30 + 20 50. 50 + 20 70 + 20 90. D m minus a. a एज्यूम मीन हम मिड वैल्यू में से ही मानेंगे. 50 एज्यूम कर लिया. तो 10 - 50 इसमें से इसलिए मानते हैं सो दैट आर कैलकुलेशन बिकम इजी. चाहे तो हम 100 भी ले लें बट उससे क्या होगा आर कैलकुलेशन बिकम टफ. तो हमारा क्वेश्चन में टाइम लगेगा. तो इसलिए हम और ज़्यादातर मिडल सी वैल्यू लेते हैं जिससे कुछ पॉजिटिव हो जाए सम आर नेगेटिव तो कैलकुलेशन और ज़्यादा ईजी हो जाए. तो ये हो जाएगा 10 - 50 -40. 30 - 50 -20. 50 - 50 0. 70 - 50 20. 90 - 50 40. अब d डैश होता है d अपॉन I इनका गैप 20. तो 40 - 40 अपॉन 20 -2. -20 अपॉन 20 -1. 20 0 अपॉन 20 0. 20 अपॉन 1 20. 40 अपॉन 2 40 अपॉन 20 2. नाउ एफ डी डैश फाइंड करना है. फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय d डैश. तो f इंटू d डैश. 10 2 ज़ा 20 -20. 8 इंटू -1 -8. 12 0 ज़ा 0. 14 1 ज़ा 14. 6 2 ज़ा 12. तो अब इनका टोटल किया -28 पॉजिटिव 26. तो -2 आ गया सिग्मा एफ डी डैश n और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 50. x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश -2 अपॉन n 50 इंटू I 20.
तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 अपॉन 5, 0.8, 50 minus 0.8, 49.2. So this is the method of calculating arithmetic mean by step deviation method under continuous series. So here minus 40 upon 20 minus 2, minus 20 upon 20 minus 1, 20 0 upon 20 0, 20 upon 1 20, 40 upon 2 40 upon 20 2. Now एफ डी डैश फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डी डैश, तो एफ इंटू डी डैश, 10 2 ज़ा 20 माइनस 20, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, 12 0 ज़ा 0, 14 1 ज़ा 14, 6 2 ज़ा 12. तो अब इनका टोटल किया माइनस 28 पॉजिटिव 26, तो माइनस 2 आ गया सिग्मा एफ डी डैश एन और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 50. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश माइनस 2 अपॉन n 50 इंटू आई 20. तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 अपॉन 5, 0.8, 50 minus 0.8, 49.2. So this is the method of calculating